رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، صبت رسول اللہ اور صبت اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ سید اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان تھی کہ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانہ اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا ہے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک، کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک۔ ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ میں کرو لاہوروں نکلیا سی بہت ٹینشن وچ، اینی ٹینشن سی بھئی کتھے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جدو اتھے پہنچے ہیں ساریاں ٹینشناں دور ہو گئیاں نے۔ یہاں میں بہت کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور مرشد اتار کے مدنی پھول مل رہے ہیں ہمارے کو۔ بالخصوص نماز کے حوالے سے وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اس کے بعد نماز کے جو احکامات ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر فرض علوم جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ایک ماہ کے اعتکاف کے اندر یہاں پر سکھایا گیا اور سیکھنے کو بھی ملا۔ مدنی مذاکرے، اس میں سوالات، اور دوسرا جو ادھر حلقوں کا نظام ہے یہ بہت اچھا ہے۔ جو ہمارے بزرگ نوجوان ہیں انہیں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ پیر صاحب نے رات مدنی مذاکرے میں بتایا، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ اپنی جلد از جلد نمازیں قضا ادا کر لے۔ نماز درست ہوئی ہے، اتنے عرصے سے ہم پڑھتے رہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ آ کے ایک الگ ہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کرائیں چنا اسی رزق جنہ ضائع کرتے سی نا، سانو اتھے آ کے پتہ لگا ہے بھئی اسی کس طرح رزق ضائع کرتے رہے ہیں۔ کار وچ برکت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی ساڈے نگران نے سانو ہن آ کے دسیا بھئی ہر رزق دے دانے تے نہ کسی وچ برکت ہے۔ ماشاءاللہ گھنوں کچھ سیکھن کا ملیو ہے۔ تے غسل جو فرائض، مسواک جو سنتوں، نماز یا فرائض، نماز شرائط۔ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور سیکھیں، یہ وقت ہے، وقت بار بار نہیں ملتا انسان کو۔ روحانیت کیا چیز ہے، روحانیت کیسی ملتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ فیضان مدینہ میں تشریف لائیں، اعتکاف میں شرکت کریں اور دیکھیں گے انشاءاللہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ جو عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ ہم بھی علم دین سیکھیں تو ان کو ہم یہی عرض کریں گے کہ وہ بھی آئیں، 10 دن کے لیے اعتکاف کریں تاکہ ان کو بھی جو فرائض علوم ہے وہ بھی آسانی سے سیکھنے کو جو وہ ملیں گے۔ اسی تے کہنے ہیں جڑے ٹینشن نہیں چاہتے نے کار چھڑ کے چلے جاندے نے، کوئی کتھے تکے کھاندا کوئی کتھے تکے کھاندا، انہاں دا کوئی حل نہیں ہے۔ ایتھے آن انشاءاللہ انہاں دی آخرت اچھی ہوئے گی، کوئی سیکھے تے جان گے۔ اگر اچھا کام کریں گے تو الحمدللہ فائدہ ہوگا ہمارے لیے، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو ایک دفعہ یہاں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کو زندگی کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ میں نے یہاں پر یہ نیت کری ہے کہ میں نے جو داڑھی کٹوائی تھی اپنی اس سے توبہ کرتا ہوں اور اب 1 مٹھی کی داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ زلفیں سجاؤں گا، امامہ شریف سجا لیا ہے اور 63 دن کا تربیتی کورس بھی وہ کروں گا اور اس کا فارم بھی بھر دیا۔
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 माह के लिए और नियत करी है आगे। एहतिकाफ करने का सही मकसद जो अगर किसी ने एहतिकाफ करना है ना तो फैज़ान मदीना में आके अपने मकसद को पूरा कर सकता है। जिस तरह इधर इबादत का एक माहौल है ना दूसरी जगहों में शायद ना मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। मकसद भी यही है कि जो वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ आया अपना कुछ टाइम जो है वो अल्लाह की राह में हुजूर की मोहब्बत में इस्लामी भाइयों के साथ गुजारने को मेरा दिल था। मुझे यहाँ माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली दफ़ा आया था तो मेरी दाढ़ी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरी दाढ़ी है, मैं सुन्नत के मुताबिक चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत हमें नमाज का रोज़ाना कोई न कोई नया तरीका सिखाते हैं। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सलाम फेरने का तरीका इरशाद फरमाया था। कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब, कोई सिंध और दीगर कई शहर तो आवाम आई दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अतार दे साए तले सारे एक लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इतने मोहब्बत भरे अंदाज नाल गुफ्तगू कर देंगे, मज़ा आंदा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नेकियों में गुजर रहा है, नमाज़ें बाजमात पढ़ रहे हैं और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत का दीदार देखकर रग़बत हो जाता है कि हम भी नेकियां करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल करने के लिए नशिस्तें लगती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही ज़ौक़, यही जज्बा देखते हुए मैं 4 से 5 इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अपने साथ लेकर आया हूँ। वो यहीं मेरे साथ 10 दिन का इत्काफ करेंगे। यहाँ पे 24 घंटे मतलब नमाज, कुरान, तिलावत इन्हीं चीज़ों में मतलब मसरूफ़ हैं और कोई जहन किसी ख़राब जगह नहीं जा रहा है, मुतमईन है, बहुत खुश हैं यहाँ पे। यहाँ पे नमाज, रोज़ा, दीगर तमाम मसाइल को आसान अंदाज में, सहल अंदाज में बयान किया जाता है। तरबियत भी हो रही है, जैसे वालिदैन की फरमान बरदारी करना, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना, दोस्तों के साथ किस तरह रहना है, किस तरह, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिखा रही है। गुंबद को देख के तो गुंबद खजरा फौरन दिल दिमाग में घूमा। ईमान ही तब कंप्लीट होगा कि जब वो हुजूर की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होगी। यहाँ आके जब हुजूर की याद आएगी तो फिर उस जगह के बारे में क्या कहने। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ है इल्म की मजलिस है, एक सुबह भी इल्मी बातें हो रही हैं, शाम भी इल्मी बातें हो रही हैं, फिर निगरानी शुरा फजर के बाद बयान करते हैं, उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ देखी है, जेड़े बंदे इत्थे आने तो बाद कई लोग मेरे सामने सिगरेट, नस्वार, पान वगैरह छोड़ी है। जेड़ी चीज़ सुनने अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े ज़हन ते असर कर दिए और साढ़ा दिल अंदरों रोंदा है। नमाजें पढ़ रहा हूँ, तरावी पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ पहले नहीं था मेरी ज़िंदगी के अंदर। एक ज़िंदगी मुकम्मल नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर आके सुनते रसूल और जुल्फ़े रखने का और इमामा शरीफ बांधने की नीयत की है। जो मैंने कटवाई थी उससे मैं तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह जो है आगे पूरी सुनते रसूल एक मुट्ठी रखने की नीयत करता हूँ। यहाँ भी आए माशाल्लाह से बहुत अच्छे, हर कोई अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करता है। बाहर वाला जैसे लोग बाहर बात करते हैं वो नहीं है, बहुत अच्छा आप जनाब से लोग बात करते हैं, तरबियत देते हैं, मदनी ज़हन देते हैं, लोगों को दीन के मसाइल से आगाह करते हैं। वहाँ लोगों को दीनी किताबों के तरगीब भी देते हैं कि इस किताब का मुताला फरमाएं, इस किताब का मुताला करें। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर में फैज़ान मदीना में एक माह का इत्काफ की बरकतें हासिल कर रहा हूँ और यहाँ पर एक माह के इत्काफ में बाकायदा हल्के लगाए जाते हैं डेली और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें नमाज के मसाइल नहीं आते थे, वज़ू के तरीके नहीं आते थे अच्छे पूरे, और गुस्ल पूरा करना नहीं आता था। डेली यहाँ हल्कों में हमें सिखाया जाता है और अब मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह एक मुठ दाढ़ी रखूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह इमामा शरीफ मैंने सजाया है और इंशाअल्लाह ये सारी ज़िंदगी इसी तरह इमामा शरीफ सजा के रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की, आप मुर्तकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। तो इर्तिकाफ की नियत के बाद जब तक आप मस्जिद में रहेंगे मुफ्त सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफ्ल इर्तिकाफ खत्म हो जाएगा। फिर मस्जिद में आए तो दोबारा नियत कर लें।
याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नीयत की हो। नियत नहीं की थी तो इफ्तार नहीं कर सकेंगे मस्जिद में। हाँ, नियत कर लें और इफ्तार कर लें। बेहतर तरीका ये कि इत्तिकाफ की नियत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, न सवाब के लिए करें। और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो कम से कम 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1445 हिजरी के माह रमजान मुबारक की 16वीं शब की निस्बत से रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 5 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 16, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी बेसवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए बाय शाएँ करता, अपने कहे पर बिला वजह ज़िद करता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আচ্ছা দোস্ত, কাজা রোজার সাথে কাজা তারাবি আদায় করা যাবে কিনা? তোর এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, আমি আলে সুন্নতের কাছে জেনে নি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার নাম সেলিম, আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। কাজা রোজার সাথে কাজা তারাবি নামাজ কি পড়া যাবে? माज़ल्ला किसी ने रोज़ा कज़ा कर भी दिया तो गुनाहगार है, जानबूझ कर किया तो तौबा करे। ये तरावी की कज़ा नहीं है। तरावी इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद इसका वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इसका वक्त है। तो जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तरावी का वक्त भी ख़त्म हो गया, अब इसकी कज़ा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वित्र अगर कज़ा हुए हैं तो वित्र कज़ा करने पड़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। If someone missed the Arabic khutbah of Jummah, is his Jummah Salah valid or not? यानी कि अगर किसी ने जुमे की नमाज के लिए लेट पहुंचा है तो खुतबा मिस की उसने, तो क्या उनके जुमे की सलाह कबूल हो जाती है कि नहीं? कबूल करने वाला अल्लाह है। वैसे जुम्मे का खुतबा मिस नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता मिस हो गया किसी का तो जुम्मे के जो उसने 2 फर्ज पढ़े हैं तो वो अदा हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने तो जुम्मा के खुतबा और इमाम साहब ने, खतीब साहब ने खुतबा तो दे दिया है, तो शर्त ये है कि 3 अफराद खुतबा सुनने वाले कम से कम हों। 3 कहना, हाँ 3 अफराद, तो वो हो चुका है खुतबा। लेकिन ये कि सबको खुतबा सुनना चाहिए, जानबूझकर ताखीर ना की जाए इसमें। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं गैर आलिम को आलिम कहना कैसा है? अब जब कंफर्म मालूम है कि ये आलिम नहीं है, अनपढ़ है, उसको आलिम कहना झूठ तो हुआ ना। खुशामदन कहा होगा या बाज़ का तंजन भी कहते होंगे, कोई मसला गलत बता देता हो और आदत होगी तो बड़े अल्लाह मसाब है यार, आप तो हजरत आप खामोश रहे। तो यहाँ आलिम कहना ना पाया गया, बल्कि उसको रद्द किया गया कि तो आलिम है नहीं, क्या को मसले बताता है। तो जैसा मौका मतलब, वरना ये कि आलिम समझना, उसको आलिम कहना समझकर, यार ये तो गलत ही होगा ना, जबकि पता है कि आलिम नहीं है। सवाल कर रहे हैं, बच्चों की उम्र कम शो करवाने के लिए बे फॉर्म पर 1 से 2 साल कम करके लिखवाने का क्या हुक्म है? अगर किसी ने ऐसा किया तो इसका इजाला क्या होगा? झूठ है नहीं है, ये दाखिला दिलवाने के लिए स्कूलों में ये करते हैं जी, 1 साल 2 साल कम बताते हैं, तो
झूठ है और इसकी सच्ची तौबा करे, इजाला होगा इसका, है ना। इजाला तो वही जहाँ कागजात हैं उसमें, हाँ कागजात में चेंजिंग, तो फिर उसका दाखिला और सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी क्या किसी को एहसास हुआ होगा, अब बच्चा जवान हो गया और पढ़ लिख कर आगे निकल गया, तो अब मसला किसी ने बताया होगा कि यार ये तो झूठ था, अब एहसास हुआ, डर लगा, तो तौबा करे। तौबा तो करनी ही पड़ेगी। अब इजाले क्या हाँ दुश्वार तरीन मामला है। सारे रजिस्ट्रेशन जितने भी इनके रजिस्टर्ड है सब में ये वही उम्र लिखी होगी, हर साल वही उम्र, 6 माह में भी जो इम्तिहान होते हैं इनमें यही उम्र, और दीगर मामला में भी उम्रें गलत दिखवाते होंगे। और मतलब अब तो बगैर सनद के सनद भी तरकीब बन जाती है, मिल जाती है, जो उनसे सनद चाहिए मिल जाती होगी। मतलब ऐसा मुझे पता है, मतलब बाद ऐसे केस देखे हैं मैंने कि कहीं नौकरी लेनी है तो जाली सनद लेकर नौकरी भर्ती हो गया। ये झूठ है, जरा धोखा है, झूठ है, रोजी देने वाला अल्लाह है। तौबा तो करनी ही पड़ेगी, फर्ज है। और साथ में ये कि इजाला भी जहाँ जहाँ मुमकिन है इजाला करना, यानी ये बता दिया जाए कि मैंने गलत उम्र लिखवाई थी, ये उनको यानी कि जो स्टाफ है उनको। अब आवाम के सामने अपने गुनाह का इजहार करना कि मैंने झूठ बोला था, इसकी हाजत नहीं है, बल्कि ना करे गुनाह का इजहार। मेरे अहले सुन्नत, मैं मोहम्मद यमीन गिलानी जेलम से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल अर्ज करना है। अगर स्कूल में बच्चा काम अच्छा करे तो टीचर तालियां बजाने के लिए कहती है, क्या तालियां बजाई जा सकती है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा काम कर लिया तो तालियां बजाई जाती हैं, हाँ स्कूल में तालियां बजाई जाती है। और भी बहुत सारे कामों में, तकरीबों में, सालगिरह में और जलसों में, और तालियां तो आम है हमारे यहाँ। तो ये तालियां बजाना नाजायज है, गुनाह का काम है, इससे तौबा करनी चाहिए और ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए जहाँ तालियां बजती हो। एक गुनाह भरे मजमे का हम बढ़ा रहे ना उसको, उसमें हिस्सा बन रहे हैं उसका, तालियां भी सुनेंगे, फिर अच्छा आप ताली नहीं बजाते हो, जान जान के यूं करेंगे, तो गुनाह करने वालों की नक्काली तो की ना आपने। तो ये जो रास्ता जन्नत का हो ना उसी पर चला जाए, जो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जा रहा है ना उसका रुख ना किया जाए, इतने में समझ जाए। घाट घाट का पानी पीने की क्या जरूरत है यार, मदनी घाट अपने पास मौजूद है, वाया मदीना जन्नत की तरफ इंशाअल्लाह रुख है अपना। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद हज़ार खान का दामन पकड़े रहे, इन्होंने गौस पाक के कदमों में हमें डालना है, और गौस पाक में अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचाएंगे, और इंशाअल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। सैयदी अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि SMS के ज़रिए सवाल है, क़नाअत से दूरी ही क्या टेंशन और डिप्रेशन का सबब है? क़नाअत से दूरी? जी, क़नाअत से दूरी। मुमकिन तो है बिल्कुल, यानी कि जितना अल्लाह ने दिया है उसी को मतलब काफ़ी समझना, हल मिम मजीद यानी उसकी हिर्स ना रखना, तो ये तो है बहुत बड़ी सादत की बात। क़नाअत तो बहुत बड़ा वस्फ खूबी है जो अल्लाह जिसको अता कर दे। बातें तो सबको करनी आती है, लेकिन हकीकत में क़नाअत पसंद होना, क़ानिअ होना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तो अब अगर क़नाअत नहीं होगी तो टेंशन रहेगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो इतना मिला, उतना चाहिए, उतना चाहिए, इतना चाहिए, तो हल मिम मस्जिद का नारा लगता रहेगा। क़नाअत नहीं मिलेगी तो टेंशन और डिप्रेशन भी हो सकता है इसका, और बल्कि टेंशन तो कहूँ कि हर बीमारी का सबब बन सकता है, तो शायद हो सकता है कि बन सकता हो। यानी जैसा टेंशन, बाज़ों का हल्का फुल्का टेंशन होता है कोई मसला नहीं होता, बाज़ों का देखे वो ज़्यादा टेंशन होता है, फिर इससे ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि वो टेंशन इतना होता है कि बाज़ों का बंदा हार्ट फेल हो जाए, खुदकुशी की तरफ माइल हो जाए। तो खामखा का दुनियावी टेंशन पालना ये नहीं ठीक। हाँ ईमान
की हिफाजत का टेंशन हो, बुरी मौत के खतरे का टेंशन हो कि कहीं मेरा ईमान ना ज़ाया हो जाए, मेरी आखिरत ख़राब ना हो जाए, क़यामत के दिन पुल सिरात से मैं कैसे पार लगूंगा, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता मगर गुनाह मेरे कहीं मुझे जहन्नम में ना पहुंचा दे। इस तरह के टेंशन ये सादतमंदों का हिस्सा है, ये होने चाहिए। जब भी तो आदमी गुनाह से बचेगा और दूर हटेगा और बिल्कुल लाउबालीपन होगा और इजी लेता रहेगा गुनाह को, तो गुनाह से बचेगा कैसे? सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी अब्दुल्ला मंजूर अत्तारी इस्लामाबाद से SMS के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, नमाज में अगर बेसाख्ता दुरूद पाक ज़ुबान से जारी हो गया, चाहे वो क़याम में या किसी भी रुकन में, तो आया कि नमाज हो जाएगी या नमाज फासिद हो जाएगी? बाहर शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 606 मसला नंबर 17 अल्लाह पाक का नाम मुबारक सुनकर जल्ला जलालुहू कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनकर यानी नाम मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ा, या इमाम की क़िराअत सुनकर सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहू कहा, तो इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। जबकि बक़सदे जवाब कहा, जवाब के इरादे से कहा, और अगर जवाब में ना कहा तो हरज नहीं। यूं ही अगर अज़ान का जवाब दिया नमाज फासिद हो जाएगी। तो जो ये सवाल किया गया कि बेसाख्ता अचानक दुरूद शरीफ जारी हो गया, तो अब अगर किसी जवाब के ज़िम्न में नहीं था, बेसाख्ता जवाब में भी जारी हो सकता है कि वो नमाज क़िराअत में ये अल्फाज आते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बेसाख्ता जारी हुआ जवाब आदत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर जवाब की नीयत से ये ज़बान से जारी हुआ तो नमाज टूट जाएगी, और जवाब की नीयत नहीं थी तो कोई हरज नहीं है। अब जैसे क्या छींक आई किसी को तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो जवाब की नीयत नहीं है तो कोई हरज नहीं है। और अगर दूसरे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इसने जवाब की नीयत से नमाज पढ़ने वाले ने यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज टूट जाएगी। तो ये इस अब अल्लाह का नाम ले और नमाज टूट जाए, तो यहाँ मतलब ये जो जवाब जो है ना, ये कलाम इसको कहा जाएगा नहीं, ये बातचीत है। तो यहाँ नमाज में बातचीत की इजाज़त नहीं है, तो ये बतौर बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक या ये यरहमुकल्लाह वगैरह कहा गया। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो ज़ाहिर है कि सलाम भी तो दुआ है और सलाम अल्लाह का नाम है। तो अब ये कि इसका भी किसी ने जवाब दिया तो नमाज टूट जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। या सजीदी आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अदनान अहमद का सवाल है, कोई ऐसा शख्स पहली सफ़ में खड़ा हो जाए जिसका दिमागी मसला हो, नमाज में वो इधर उधर दाएं बाएं सामने पीछे हर जगह देखता रहे, ऐसे को पहली सफ़ में खड़ा होने का क्या हुक्म और इनको किस तरह हटाया जाए वहाँ से? पहली सफ़ हो या आखिरी सफ़ हो, ऐसा शख्स जो दीगर नमाजियों की ईज़ा का बाइस होता हो तो उसको मस्जिद से रोकना वाजिब है, और उसके लिए वाजिब है कि जो इसकी कुदरत रखता हो। वरना ये क्या मेरे जैसा आपके जैसा उसको हटाएगा ना कि भाई आप चले जाओ, तो लोग उसकी हिमायत में फितना करेंगे, फसाद करेंगे। इसको नमाज, अरे भैया नमाज तो पढ़ी नहीं रहे, उसको पता ही नहीं नमाज कैसे पढ़ते हैं, सफ़ भी कता कर रहा है और नमाजियों के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है, तो इसका मस्जिद में क्या काम? तो पगले आ जाते हैं मस्जिदों में, लवारे करते होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, कोई कासिफ ज़दाओं उठा लेते हैं, अचानक पहली दूसरी तीसरी रकात में वो दमबाजी शुरू कर देता है। तो मिर्गी के मरीज, ऐसे मिर्गी के मरीज के इनको दौरा पड़ जाता है और वो गिरते हैं और झाग मुंह से निकलता है। ये नमाजों में सफ़ों में गिर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के मतलब मनाजिर हो सकता है आपने देखे हों, मुझे भी अपने इसके तजर्बात
याद पढ़ते हैं कि इस तरह होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद को नमाज में सफ़ों में नहीं आना चाहिए। हाँ, हर मिर्गी का मरीज ऐसा नहीं होता तो उसमें हर्ज नहीं है कि जो नमाज प्रॉपर पढ़ सकता है, समझता है सब कुछ, और इसको इस तरह के अचानक दौरे नहीं पढ़ते जिससे वो सब उताज हो जाए सारा निज़ाम, उछलते हैं, हाथ पैर मारते हैं नमाजों में, बाज़ औक़ात वहाँ से भाग गया, जिन आ गया, दो इधर बाज़ औक़ात भागते हैं, दो उधर भागते हैं कि कुछ क्या हो गया ये। जब रश ज़्यादा होता होगा तो घबराहट ज़्यादा होती होगी। तो मस्जिद अमन की जगह और पूरा अमन माहौल इसका ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे नमाजियों को तकलीफ, मस्जिद का एहतराम पामाल हो, फ़ज़ा जो है वो मस्जिद की ख़राब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम के साथ सौद या सलाम लिखना, नीज़ अंबिया किराम अलैहिम रिज़वान के नाम के साथ आइन और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के साथ रा दौद लिखना कैसा है? अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक लिखा तो उस पर पूरा दुरूद शरीफ लिखना चाहिए। इसका मुखफ़फ़ शॉर्ट फॉर्म स्वाद सलअम ये लिखते हैं। तो इसको फतह रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी हराम लिखा है। और लिखना है तो फिर पूरा दुरूद शरीफ लिखे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम इतना लिखे। अब रहा ये कि रेज़वाद रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह औलिया किराम के नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह की जगह राहा इस तरह जो लिखते हैं तो ये भी ना करें, सब मना है कि रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह ये पूरा लिखें। लेकिन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो स्वाद लिखा वो ज़्यादा सख्त है ना, ऐसा ही है, वो ज़्यादा सख्त है। अच्छा, अल्लाह पाक के नाम के साथ जीम लिखते हैं, इसका हुक्म भी शायद वो सख्त नहीं है। अच्छा, लिखे तो पूरा लिखे, वरना ना लिखे तो ये भी नाजायज़ है फिर। अच्छा, तो अल्लाह पाक का नाम लिखने के साथ लिखना ही है तो जल्ला जलालुहु पूरा लिखे, और या ताला लिख ले तो भी काम चलेगा, अज़्ज़ा व जल या अल्लाह पाक, अल्लाह करीम, ये ताज़ीम के अल्फाज। इसमें 12 उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि नाम मुबारक अल्लाह का जब लिखा जाए, लिया जाए तो उसमें ताज़ीम का लफ्ज़ कंपलसरी है या नहीं है, वाजिब है या नहीं है। तो बहरहाल लेकिन जब लिख ही रहा है तो आप पूरा लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मौजूद हाज़रीन में से एक मोतक़िफ़ इस्लामी भाई सवाल अर्ज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे स्पेशल पर्सन इत्काफ़ में है, एक स्पेशल पर्सन आपसे सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम